So hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to see the ribonucleic acid. ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के अलावा जिसे हम लोग इसमें देखने वाले हैं. Already we have seen the DNA in the previous lectures which will be linked in the description box. So you can go and check out from there. So let's get started. So this is the single stranded structure. DNA जैसे कि double stranded होता है तो over here RNA is the single stranded structure. So next point is then it is made up of a nitrogenous base. इसमें जो nitrogenous base होंगे वो थोड़े से एक तो अलग होगा डीएनए से, जैसे कि इसमें होंगे एडेनिन, ग्वानिन, cytosine, and in DNA there is thymine. In place of this thymine over here in RNA it will be uracil. बैकबोन किस तरह से इसका आरएनए जो है ये बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड along with the पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. तो ये न्यूक्लिक एसिड किस तरह से बना हुआ है विद द पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. So now going to see that this is the phosphoric acid phosphate group we are talking about. So PO4 2 minus इस तरह से ये होता है. So ये this is the phosphoric acid. ये है इसका स्ट्रक्चर. ये है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड दिस इज द 5th कार्बन. इसी 5th कार्बन पे ये फॉस्फोरिक एसिड आके ऐड होगा और इस फर्स्ट कार्बन पे दिस नाइट्रोजनस बेस विल बी added any one of them. So let's see the structure. So seeing the structure of the RNA over here in the 5th carbon you are able to see the phosphoric acid and जो ये फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे एनी वन एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल या साइटोसिन कोई आके अटैच हो जाएगा. तो ओवर हियर वी हैव रिटन द इंपॉर्टेंट पॉइंट. So this was the structure of RNA. Now the structure of RNA के बाद structure कितने टाइप के RNA होते हैं this we are going to see. So type of RNA, there are 3 types of RNA. So first one is ribosomal RNA, then it is messenger RNA and third is the transfer RNA. So we are going to see the first one, that is ribosomal RNA. So it makes up about 80% of the total RNA of a cell. जो ribosomal RNA है वो पूरा का पूरा सेल का 80% बना रहा है of the total RNA. ठीक है, सेल में कितना RNA प्रेजेंट है उसका 80% राइबोसोमल RNA होते हैं. इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA. इसके हायर मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा तो 10 to the power -2 मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, मोलर. एंड अनपेयर्ड बेसिस इन RNA मॉलिक्यूल बाइंड्स mRNA. क्या करता है, इसके जो अनपेयर्ड बेसिस है RNA मॉलिक्यूल के ये बाइंड कर जाएंगे mRNA से एंड tRNA से एंड टू द राइबोसोम. क्योंकि जो ये काम करेगा ना, ये सारा काम होगा प्रोटीन ट्रांसलेशन का और ये प्रोटीन ट्रांसलेशन का जो काम होगा वो राइबोसोम में होगा, राइबोसोम के थ्रू होगा. So over here the rRNA and इसके जो unpaired bases हैं that will be attached to mRNA and tRNA to the ribosome by Mg++ linkage between phosphate group on two molecule. So hereupon let's see it is the structural and functional component of the ribosomes. क्या है ये राइबोसोम का structural and functional component, क्योंकि ये सबसे ज्यादा abundance रखता है राइबोसोम सेल में. टोटल आरएनए का ये 80% है, तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है. तो ये राइबोसोमल आरएनए अल्टीमेटली यू कैन से इट इज मेकिंग द राइबोसोम और ये राइबोसोम फिर प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करता है. ये राइबोसोम एमआरएनए और टीआरएनए की मदद से प्रोटीन ट्रांसलेशन यानी कि एमिनो एसिड को बना रहा है. I hope it is clear to you. So it is present in the cytoplasm of prokaryotic and eukaryotic cell. So coming to the tRNA, क्योंकि mRNA we have already seen in the protein transcription and the post transcription unit, everything is explained for the mRNA. So mRNA का जो link है I'll put in the description box as well as in the comment box, you can check out from there. So coming to the tRNA, transfer RNA, tRNA acts as the vehicle to carry amino acid from the cytoplasm and transport them to the specific codons of mRNA on ribosome.
तो ये टीआरएनए जो है ये क्या करता है, जितने भी सेल है, अगर मान लेते हैं ये एक सेल है, तो इसमें कहीं पे भी अगर एमिनो एसिड है तो ये टीआरएनए उसको ढूंढने जाएगा और उसको इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे लेके आएगा जहां पे ये एमआरएनए जो अटैच्ड है उस पे लेके आएगा और वो काम करेगा. सो लेट्स सी ओवर हियर, इट इज ऑल्सो नोन एज द अडेप्टर मॉलिक्यूल. और अडेप्टर मॉलिक्यूल इसका टर्म किसने दिया था, तो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है because it helps in the making of the amino acid. ठीक है. Then its nucleotide is 80 nucleotides and molecular weight is only about 25,000. 2D मॉडल अगर इसका बात करें तो it looks like a clover leaf, और अगर 3D मॉडल पे बात करें तो it is an L, inverted L. Coming to over here, let's see कि ये जो अमीनो एसिड्स अटैचमेंट साइट दिख रहा है, तो यहाँ पे 3' एंड पे एक यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच होते हैं. ये CCA सीक्वेंस जो दिख रहा है यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच हो रहे होते हैं. उसी तरह यहाँ पे ये वाला साइड नीचे जो दिख रहा है, दिस इज द एंटी कोडोन साइड, जहां पे इस तरह से एमआरएनए आके लगा रहता है और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई कोडोन रहेगा. उस कोडोन को ये इसके जस्ट ऑपोजिट बेसिस बनेंगे यहाँ पे, इस कोडोन के जस्ट ऑपोजिट बेसिस बनेंगे यहाँ पे, एंड विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर हियर. और यहाँ से वो टीआरएनए, ये टीआरएनए जो है यहाँ पे वो पर्टिकुलर इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सेम इसको लेके यहाँ पे आएगा कि कौन सा कोडोन को लेके आना है, कौन से कोडोन से हमें एमिनो एसिड को बनाना है. सो दिस वाज the tRNA. Over here the T loop and D loop you are able to see. एक तरफ हो जाएगा अमीनो असाइल सिंथेज, अमीनो असाइल सिंथेज बाइंडिंग, ये वाला है अमीनो असाइल सिंथेज. इसको ऊपर लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा. ये वाला हो गया अमीनो असाइल सिंथेज. ठीक है. बाइंडिंग लूप, तो ये क्या करता है, ये सर्टेन एंजाइम्स को बाइंड करवाएगा जो कि यहाँ पे मदद करेंगे एक एक कोडोन के साथ बाइंड करने में या फिर एमआरएनए को बाइंड करने में राइबोसोम के साथ. तो ये अमीनो एसिड्स को बाइंड करने में मदद करवाएगा. दूसरा है राइबोसोम बाइंडिंग लूप, ये वाला हो गया राइबोसोमल बाइंडिंग लूप. इस लूप की मदद से ये वाला पार्ट जो ये टीआरएनए है वो एमआरएनए पे अटैच हो जाता है. सो लेट्स सी ओवर हियर बाय अ पिक्चर. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ टीआरएनए. ये हो गया 3' एंड जहां पे एमिनो एसिड आके अटैच होगा. ठीक है. ये हो गया एमआरएनए. यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोडोन है, जैसे मान लेते हैं AUG. ठीक है, स्टार्टिंग कोडोन है. इसी के जस्ट उल्टा यहाँ पे रहेगा एंटी कोडोन, जैसे हो गया A का U का A और G का C. तो ये हो गया एंटी कोडोन. ठीक है. ये हो गया mRNA. थोड़ा लार्ज कर देते हैं. हाँ. ठीक है. अब ये वाले पार्ट में यहाँ पे ये वाला पार्ट जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये मदद करवा रहा है यहाँ पे अटैच करने में, इसको राइबोसोम के साथ अटैच करने में. ये वाला चीज जो होगी ना, ये पूरी तरह से ये ऐसे राइबोसोम में लगा हुआ है. तो ये राइबोसोम में लेके आएगा टीआरएनए. यहाँ पे पर्टिकुलर जो कोडोन पर दिख रहा है, इस कोडोन के जस्ट उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसी कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लेके आएगा ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड. तो यहाँ पे अगर अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला ये ढूंढ के लाएगा मिथ्योनिन को, और ये मिथ्योनिन जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री है. इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार कि एमआरएनए में जो भी कोडोन दिखेगा उस कोडोन का जस्ट ऑपोजिट इस एंटी कोडोन में प्रेजेंट होगा और इसी एंटी कोडोन का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लेके आएगा इस 3' एंड पे टीआरएनए ढूंढ के.
इसी तरह ये देते यहाँ पे ढूंढता जाएगा, ये mRNA बढ़ते जाएगा आगे और ये रीडिंग करता जाएगा, इसमें एंटीकोडोन बनाएगा और इस एंटीकोडोन से यहाँ पे वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ढूंढ के उस पर्टिकुलर कोडोन को ढूंढ के लेके आएगा और फिर वहां से वो प्रोटीन ट्रांसलेशन बनना शुरू हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट दी tRNA. ये tRNA का काम है. आई होप इट इज you understood it carefully. And if you do like the video, please like, share and subscribe. And for the mRNA, you can also check out in the description box. I'll put the link over there and as well as the comment box. So thank you everyone. Hope you like the video. Please like, share and subscribe for more such content. And furthermore, we are going to see the protein translation and the lac operon as well. And then this topic of the molecular basis of inheritance will be completed. So thank you everyone.